all. I hope you all are doing well. So children, today in this class we are going to learn about percentage and its application. So let's start with that. In the previous chapter, we have learnt the way to comparison our different quantities. In this chapter, we shall introduce another method of comparing the quantities by expressing them as equivalent fractions with denominator as 100 beta. So now let's start percentage. The word percentage is derived from the Latin word percentum, meaning per hundred. Percentage are fractions with the denominator equal to 100. It's represented by the symbol percentage, and when written alongside a number, it denotes a fractions with 100 as its denominator and that number as numerator. Thus, 1% is equal to 1 by 100 and 17% means 17 by 100. 14% that means 14 by 100, 79% means 79 by 100, etc. beta. Hope you understood. We have seen that in fractions the denominator can be any number, while in decimal fractions the denominator are all powers of 10, means 10, 100, 1000, etc. However, in percentage the denominator is always 100. Now, to convert fractions, decimals and percentage from one form to the other beta. Look at the line segment drawn below. Each of them is divided into 10 equal parts. In the topmost line segment, the points are marked as 0, 1, 0.1, 0.2, 0.3, etc. In the second and third line segment, these points are marked by the equivalent fractions with denominator 10, 100 respectively. In the fourth line, the fractions with the denominator 100 are shown as percentage, like that. See, this is decimal 0, 0.1, 0.2 and so on. This is at its fractional part, like 0.1 that means 1 by 10, 0 by 2 means 2 by 10 and 0.3 means 3 by 10 and so on. Now after that fractions with denominator 100. अब इसमें क्या कर रखा है 100 as a क्या ले रखा है denominator, and after that percentage में हम कैसे लिखेंगे, yes 0 0 रहेगा, 10 by 100 that means 10% like that. 20 by 100 means क्या होता है, yes 20%, then 30%, 40% and so on beta. I hope you understood. Now rule number 1. To convert a fractions or a decimal to a percentage, multiply by 100. Rule number 2. To convert a fractions to a fractions or a decimals, divide by 10 beta. Hope you understood rule number 1 and 2. After that, each ratio can also be expressed as a percentage, like that. This is ratio 4:5. Then on fractions, how to write it, 4/5. And decimal में हम कैसे लिखेंगे, if we divide both the number in decimal form 0.80, and in percentage form how we just write it, yes this is 80%, and this is a table of that. In the fractions we just move on, divided by 100 and then decimals divided by 100 also. Now to understand better, let's consider the example. For example, find the percentage of children of different weights for the following data. Here this is a serial number and this is a weight of children and number of children, and after that suppose number of children है हमारे पास 21 बच्चे ऐसे हैं जिनका वेट कितना है, यस 33 kg. नाउ इन फ्रैक्शंस फॉर्म 33 kg हम क्या 21 बच्चों का 33 kg के अकॉर्डिंगली अगर हम परसेंटेज निकालेंगे एज पर 100, सो एज अ फ्रैक्शंस इट जस्ट कन्वर्ट 21 by 100, और एज अ परसेंटेज हम क्या लिखेंगे, यस इट्स अ 21%. सिमिलरली 35 kg दैट मीन्स 28 चिल्ड्रंस ऐसे बच्चे हैं जिनका 35 kg वेट है, सो एज फ्रैक्शंस 20 by 100 एंड फ्रैक्शंस में 20 by 100 और परसेंटेज में हम कैसे लिखेंगे 28%. Similarly 40 kg and 45 kg. I hope you understood well. So now beta solve examples
example number 1. Express the following as percentage. So here it is given 2/3. So let's start. 2/3 का हमें क्या निकालना है? Yes, percentage निकालना है. So we just multiply by 100 and number is 200/3. Yes, percentage. And after simplifying that number, our complete answer is yes, 66 2/3 percentage beta. Hope you understood. Now B part. B part is here 5/4. That means 5/4 of yes 100 का 5/4. So for that हम 4 और 100 को सेम टेबल से डिवाइड कर रहे हैं. After divide that we just multiply both the number and 5 into 25%. That means 125%. Hope you understood. Similarly beta C part. Okay. Now move on example 2. Convert each of the followings into a percentage. So here it is given in a decimals form. So 0.8, that means you have to just multiply 0.8 into, yes, for percentage we just multiply by 100 and then just put the sign of percentage. After multiplying that number, answer is beta, yes, 80%. Similarly 0.07, that means multiply by 100 and answer is 7%. So that means 0.027 में हम क्या कर रहे हैं? Shift the decimal point 2 places to the right. Okay? So जहाँ पर हमारे 2 places हैं, decimal के बाद में just leave that places. अगर 1 है तो just leave that places. Hope you understood well. So now move on beta next one. Example 3. So express each of the following as a fractions. So here it is given 55%. So that means 55% means 55/100. So just simplify that number and answer is 11/20. Similarly 6.4%. So for that things we just remove the decimal part first and it becomes 64/1000. And after simplifying, answer is 8/125. So we need to just divide by 100 for that. Similarly बेटा 14 3/8% को हमने क्या करना है? पहले सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, 48 मल्टीप्लाई करेंगे, देन 3 उसमें ऐड करेंगे. सो इट बिकम्स 115/8%. ये क्या है? इसका इम्प्रॉपर वे है. सो इम्प्रॉपर में करने के बाद हम क्या करेंगे? उसको 100 से डिवाइड करेंगे एंड आफ्टर दैट सिंप्लीफाइंग और आंसर आएगा हमारा yes 23/160. So this is how we just express the as a fractions. Hope you understood. Now example 4. Express each of the following as a decimal. So अब हमें क्या करना है? डेसिमल फॉर्म में लिखना है. So 65%. 65% that means 65 divided by 100. So after dividing, answer is 0.65. Yes. So this is decimal form. So what we are doing here, divide by 100, shift the decimal point 2 places to the left. Same हम क्या करेंगे? 8.8 का कर रहे हैं हम. ओके हमने जस्ट क्या करा? उसको डेसिमल रिमूव करा और जितने हमारे डेसिमल से उतने प्लेसेस हमने लीव करने हैं वहाँ से. And 327, that means 327%. 327 divided by 100 and answer is 3.27% beta. Hope you understood well. So example 5. Express 16% as a fractions. B part is a decimal और C में हमें क्या करके दिखाएंगे? रेशियो में. सबसे पहले हमने क्या करना है? 16% को फ्रैक्शंस में करेंगे. सो वी नो दैट फ्रैक्शंस में करने के लिए हम क्या करेंगे? जस्ट डिवाइड बाय 100 और आंसर आएगा हमारा 4/25. डेसिमल में करने में 16/100 सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद हम क्या करेंगे? उसको 16 और 100 को डिवाइड करेंगे. सो 0.16% हमारा एज अ डेसिमल आएगा. रेशियो में करने के लिए 16 और 100 को जस्ट हम सिंप्लीफाई करेंगे 4/25 एंड देन 4:25 is the ratio of that one beta. Hope you understood all the examples very nicely. So now move on to find percentage of a given number or quantity. Solve example. Example number 1. Find 10% of 130. So
हम क्या करेंगे 10/100 लिख रहे हैं ऑफ 130 मीन्स मल्टीप्लाई बाय 130. सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग 10 1s are 10, 10 10s are 100 और फिर ये हमारा आंसर आ गया कंप्लीट 13. होप यू अंडरस्टूड. नाउ बी पार्ट 9% ऑफ यस ₹140 का 9% हमें निकालना है. सो 9/100 ऑफ 140. सो हम क्या करेंगे जस्ट 140 इंटू 9/100 एंड 140 को 9 से मल्टीप्लाई करा 1260/100 एंड 12.60 is our answer, means 12 rupees and 60 paise. Hope you understood. Now same C part बेटा 19% निकालना है हमें किसका 45 किलोमीटर का. So 19 into 45 divided by 100. So 19 into 45 हमारे होते हैं 855 divided by 100. So answer is 8.55 kilometer. Hope you understood. So now to express a quantity as a percentage of another. Solve example. Example number 1. Express. So 3 as a percentage of 20. So now solution beta. So A part में क्या है 3 as a fractions of 20. So that means आपने क्या लिखना है 3/20. Okay, like that way. And after that आप क्या करोगे 3 as a percentage of 20. That means 3/20 into multiply by 100. So आप इसको multiply करोगे 100 से. So हमारा क्या आएगा simplify करने पे आंसर आएगा yes 15% is answer. So 3 as a percentage of 20 is 15%. Okay. So now B part में हमारा क्या है 1/6 as a percentage of 1/4. So same हम क्या करेंगे 1/6 is divided by 1/4 into 100% like that way. And after that what we need to do just simplify all the numbers and our complete answer is beta 66.67%. I hope you understood well. So now example 2. Write A part is 38 paisa as a percentage of ₹1. So we know that 1 rupees is equal to how many paise? Yes 100 paise. So now required percentage हमें क्या निकालनी है 38 divided by 100. So 38 divided by 100 into 100%. So answer is we are just change to same unit. So हम simplify करने पे हमारा आंसर आएगा 38%. Okay. B part is here ₹7 as a percentage of ₹28. Okay. So हमने क्या करना है रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या निकालनी है हमें 28 का 7. दैट मीन्स 7 डिवाइडेड बाय 28 एंड मल्टीप्लाई बाय 100. नाउ जस्ट सिंप्लीफाई आंसर इज यस 25%. सी पार्ट इज 46 पैसे को किस में करना है परसेंटेज ऑफ ₹2.30. सो 2.30 मीन्स 2 रुपये 2 रुपीज़ 30 पैसे इज इक्वल टू हाउ मेनी पैसे 230 पैसे. सो नाउ रिक्वायर्ड परसेंटेज हमारी क्या बनेगी 46 डिवाइडेड बाय 230 इंटू 100 इज इक्वल टू आर 20% बेटा. ओके. Similarly, D part, E part, F part, just change the unit and just multiply by 100 and your answer is there beta. Hope you understood well. So now move on next one to find the whole using a given percentage. So solve example number 1. Find the number whose 19% is 76. So हम क्या करेंगे सबसे पहले 19% of required number is equal to 76. Okay. Then हम क्या करेंगे 19 divided by 100 into required number is equal to 76. तो अब हमने क्या करना है we need to just find out the required number. So required number हो जाएगा 76 into now we are just doing reciprocal of that number which is 19 by 100. We are just writing 100 by 19 and after simplifying answer is 400. Hope you understood. Now move on example 2. So here it is 45% of a certain sum of money is ₹117.
find the total sum. So let the sum of money be, जो हमारे पास मनी है उसका जो सम है उसको हम मान के चल लेते हैं, दैट इज x. देन 45% ऑफ x का 45% कितना होगा? यस, हम क्या करेंगे, 117 विच इज ऑलरेडी गिवन हेयर, 45 बाय 100 इंटू एक्स, दैट इज 117. सो x कितना हो जाएगा? 117 इंटू, नाउ वी आर जस्ट डूइंग रेसिप्रोकल हेयर, सो 45 by 100 is converted to 100 by 45, and after simplifying our answer is 260. So we can say that the sum of money is rupees 260. Hope you understood well, beta. So now move on next one, which is percentage of increase of decrease. So a percentage of change shows how much a quantity has increased or decreased in comparisons with the original quantity. So let's see percentage change हम कैसे निकालेंगे. So for that, amount of increase of decrease divided by original amount into 100. So this is very important, just remember that things very nicely. Now solve examples for more clarity. Example number 1. So here it is given, if the price of a stapler increases from 50 rupees to 58. ओके, स्टेपलर का जो प्राइस है वो बढ़ गया है हमारा, 50 से कितना बढ़ गया है? 58 बढ़ गया है. सो नाउ फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज. तो वो कितना परसेंट बढ़ा है? यहाँ तो वो रुपीज़ के फॉर्म पे बढ़ा है, परसेंटेज के फॉर्म पे वो कितना इंक्रीज हुआ है? सो लेट्स सी सॉल्यूशन. इंक्रीज इन प्राइस, सो प्राइस में सबसे पहले इंक्रीज कितना हुआ है? 58 में से 50 माइनस कर देंगे तो 8 रुपीज़ इंक्रीज हुआ है. सो परसेंटेज इंक्रीज, दैट मीन्स अमाउंट ऑफ इंक्रीज दैट इज 8. ओरिजिनल अमाउंट कितना है? 50. सो जस्ट डिवाइड बोथ द नंबर इनटू 100. सो आंसर इज 16%. सो वी कैन से दैट वो 16% हमारा क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है. होप यू अंडरस्टूड वेल. So now beta move on next one, which is example 2. What is the percentage decrease? अब कितना percentage decrease हुआ है if a number reduces from 70 to 49? We have a number 70 और वो reduce होकर हमारा बन गया है 49. So वो कितना percentage हमारा decrease हुआ है? Same हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे percentage decrease कितना होता है हमारा? Decrease in number, so and original number into 100. So 70 minus 49 कितने होते हैं? 21. So 21 को डिवाइड करेंगे 70 से, जो कि उसका ओरिजिनल अमाउंट है, जस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 एंड आंसर इज बेटा यस 30%. होप यू अंडरस्टूड वेल. सो नाउ मूव ऑन, फाइंडिंग चेंज बाय अ गिवन परसेंटेज. नाउ सॉल्व एग्जाम्पल. एग्जाम्पल नंबर 1, इंक्रीज 60 रुपीज़ बाई 8%. सो अब हमने क्या करना है, 60 रुपीज़ का 8% हम निकालेंगे. सो वो कितना होता है हमारा? सो सॉल्यूशन इज अमाउंट ऑफ इंक्रीज, कितना अमाउंट इंक्रीज हो रहा है? 60 का 8%. सो हाउ टू राइट इट? 8 बाई 100 ऑफ वॉट नंबर? यस 60. सो 8 बाई 100 इंटू 60 इज रुपीज़ 4.80. This is how we just do that kind of sums. Okay, so we can say that increase amount कितना हुआ हमारा? Original amount which is 60 plus increase amount that is 4.80. Now just add all the numbers together. So हमारा आंसर आएगा 64 rupees 0.80. Okay, now just see example 2 also. Decrease 120 rupees by 20%. So अमाउंट ऑफ डिक्रीज, कितना अमाउंट हमारा डिक्रीज हुआ है? 20%. किसका? 120 का 20%. हाउ जस्ट फाइंड आउट? 20 डिवाइडेड बाय 100. सो 120 दैट मीन्स मल्टीप्लाई बाय 120. सो हमारा आया कितना? वो डिक्रीज हुआ है 24 रुपीज़ डिक्रीज हुआ है. अब हमने क्या करना है, ओरिजिनल अमाउंट में से हम डिक्रीज अमाउंट को माइनस कर देंगे. सो हमारा आंसर आएगा ₹96, लाइक दैट वे. Hope you understood. Now move on beta, exercise 9.1. So
एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. हमने इसको क्या करना है, जस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है. सो हेयर इट इज गिवन 9.2%. So how we just do that? Just remove the decimal first. So it is now 92 by 10 into 100. So ये कितना हमारा बना 92 और 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. So it becomes 1000. Now simplify that. ये कौन सी टेबल से हमारा, yes 2 4 ज़ा 8, 1 इधर चले गया. So 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10 और 2 0 नीचे आ गए 50. So अब ये और सिंप्लीफाई हो सकता है. yes 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 एंड 0 का 0. अब ये आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है. सो वी कैन से दैट 23 by 250 is the answer or simplifications of that number beta. I hope you understood well. So these are the other questions. You have to complete it your own. Okay. So now we are just moving next topic, which is word problems on percentage. So let's start with that beta. Now example 1. 9 is 25% of what number? So किस नंबर का जो हमारा 25% वो 9 है. सो लेट्स सी, लेट द नंबर बी x. हम मान के चलते हैं वो नंबर हमारा क्या है, x है. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द 25% ऑफ, यस x का 25% कितना होना चाहिए, हमारा होना चाहिए 9. सो नाउ x का 25% दैट मीन्स 25 by 100. सो जस्ट मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 9. ये हमारी इक्वेशन बन गई. सो नाउ x की वैल्यू कितनी निकल गई हमारी, 25 को 100 से हमने सिंप्लीफाई करा. देन आंसर हमारा आया 4. x अपनी जगह पे रहा 9 और हमारा 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ गया. सो आंसर इज बेटा 36. सो वी कैन से दैट 9 इज 25% ऑफ 36. होप यू अंडरस्टूड वेल. नाउ एग्जाम्पल 2. निधि सेव्स ₹400 फ्रॉम हर मंथली सैलरी. मंथली सैलरी से कितना निधि सेव करती है, 400 रुपीज़. इफ़ दिस अमाउंट इज़ 10% ऑफ हर सैलरी. सो व्हाट इज़ हर सैलरी? नाउ वी नीड टू फाइंड आउट हर सैलरी. सो लेट हर सैलरी बी x. मान के चल लेते हैं निधि की सैलरी कितनी है, x सैलरी है. सो अब हमें क्या निकालना है, x का 10% निकालना है. सो x का 10% कितना होना चाहिए, yes 400, like that way. Now next, अब हम क्या करेंगे, 10 by 100, क्योंकि 100 का 10 हमने किसका निकालना है, x का, is equal to 400 and after simplifying answer is 4000 rupees. Now we can say that her salary is rupees 4000. I hope you understood. Now example 3 also. In a city 30% are females, okay, 40% are males and the remaining are children. So what is the percentage of children beta? So here it is given, let there are 100 people in the city. मान के चलते हैं सिटी में कितने लोग हैं हमारे, yes 100 है. So now females कितने हो गए, हमने कितना निकाला, females is 30%, so it is 30 and males कितने हैं 40%, that means 100 का 40% 40. children कितने हो गए, हम क्या करेंगे, मेल्स और फीमेल्स के अमाउंट को 100 में से हम माइनस करेंगे तो चिल्ड्रन हमारे कितने निकल गए, yes 30. So thus we can say that there are 30% children in the city beta. I hope you understood. Now example 4. If the angles of a triangle are in the ratio of 2:3:4, what are the angles? So for that things we just add all the numbers of ratios like 2 plus 3 plus 4 is equal to 9. And after that the sum of three angles of a triangle क्या होती है property? Yes, it's 180. Thus the angles are 29 into 180. Okay, 9 का 2 पार्ट और हमारा कितना कंप्लीट एंगल्स है 180. हम सिंप्लीफाई करेंगे सो हमारा आंसर आएगा 40 डिग्री एंड 3/9 इंटू 180 का हमारा जो एंगल आएगा वो आएगा 60 डिग्री एंड 4/9 इंटू 180 आंसर इज 80 डिग्री. लाइक दैट वे बेटा. आई होप यू अंडरस्टूड. नाउ एग्जाम्पल 5. In which subject did
आलोक ऑब्टेन द हायर परसेंटेज. ओके, लेट्स सी. मैथ्स में उसको कितना मिला है? 500 में से 325. इंग्लिश में कितना स्कोर करा है? 240. 400 में से. ज्योग्राफी में 150 में से 84 स्कोर किया है उसने. एंड साइंस में कितना किया है? यस, 132 आउट ऑफ 200. नाउ अब हमें क्या निकालनी है? हाईएस्ट परसेंटेज निकालनी है. सो नाउ सॉल्यूशन. When expressed as percentage, the marks obtained by Alok in different objects are as follows. So, मैथ्स में कितना स्कोर किया है उसने? Yes, उसने किया है 500 में से 325. So, what we need to do? We just divide both the number and multiply by 100. So, answer is कितना स्कोर किया? 65%. So, इंग्लिश में 400 में से 240, that means 240 divided by 400. So here it is a 400 beta. Okay, it is by mistake 400. So 240 divided by 400 in 200 is our 60%. Similarly 84 है. 84 कितने में से? 150 का 84. So in 200 56%. And similarly 200 में से 130 स्कोर किए हैं किसमें? साइंस में. So now multiply by 100 and percentage is 66%. So now we can just see that Alok obtained the highest percentage of marks in science beta, which is कितने हमारे? 66%. I hope you understood well. Now move on. Example 6. The excise duty on a certain item has been reduced to 580 रुपीज़ फ्रॉम 870. ओके, वो इतनी रिड्यूस हो गई है. फाइंड द परसेंटेज रिडक्शंस इन द एक्साइज ड्यूटी फॉर दैट आइटम. सो नाउ सॉल्यूशंस. रिडक्शंस इन एक्साइज ड्यूटी, कितना रिडक्शंस हुआ है? कितना डिक्रीज हुआ है? यस, 290 रुपीज़. नाउ परसेंटेज हमें निकालना है रिडक्शंस का. सो हम क्या करेंगे? टोटल में से जो हमारा अमाउंट रिडक्शंस हुआ है उसका हम हंड्रेड्स करेंगे. सो नाउ 290 डिवाइडेड बाय 870 इंटू 100 एंड आफ्टर सिंप्लीफाइंग आंसर इज 33 बाय 1/3%. ओके, नाउ एग्जाम्पल 7. इन अ सर्टेन ईयर द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वॉज अबाउट 98 करोड़. ओके, इफ it increases by 2%, so what will be its populations after 1 year? 98 करोड़ से कितनी इंक्रीज हो गई है पॉपुलेशंस? 2% इंक्रीज हो गई है. तो अब पॉपुलेशंस कितनी हो गई है? लेट्स सी. सो इंक्रीज हमने कितना निकालना है? किसका हम इंक्रीज निकालेंगे? 98 करोड़ का 2%. सो 2 by 100 into 98, so 1.96 करोड़. सो नाउ टोटल पॉपुलेशंस आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद पॉपुलेशंस हमारी हो जाएगी एक्चुअल पॉपुलेशंस दैट इज 98 प्लस इंक्रीज पॉपुलेशंस विच इज 1.96, दैट इज इक्वल टू 99 करोड़ 96 लाख बेटा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. नाउ मूव ऑन नेक्स्ट. Alternately increased or new populations 102 by 100 into 98 crore, that is 99.96 crore. Now move on. Example 8. The speed of a train is 110 किलोमीटर पर आवर. ओके, इतने की स्पीड से हमारी एक ट्रेन चलती है 1 घंटे के हिसाब से 110 किलोमीटर. इट इज़ इंक्रीज्ड बाय 20% और ये इंक्रीज्ड हो गई है कितनी? 20%. सो फाइंड द न्यू स्पीड. अब उसकी न्यू स्पीड निकालनी है हमें ट्रेन की. सॉल्यूशंस. इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द ट्रेन, कितने उसने इंक्रीज करी है? 20%. किसका 20%? ऑफ 110. सो 20 ऑफ डिवाइडेड बाय 100 इंटू 110, सो इज इक्वल टू 22 किलोमीटर पर आवर. नाउ न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी? एक्चुअल स्पीड प्लस इंक्रीज्ड स्पीड इज इक्वल टू 110 प्लस 22, 132 किलोमीटर पर आवर. और इंक्रीज स्पीड कितनी हो जाएगी? 120% ऑफ ओल्ड स्पीड, दैट इज 120 बाय 100 इंटू 110 इज इक्वल टू 130 किलोमीटर पर आवर बेटा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. नाउ सेकेंड पार्ट इज इफ़ द स्पीड इज़ डिक्रीज्ड. अब स्पीड अगर हम सपोज मान के चलते हैं कि डिक्रीज हो जाती है कितनी %?
10%. सो नाउ व्हाट वुड बी द न्यू स्पीड? सो न्यू स्पीड हमारी क्या होगी? सेम हम क्या करेंगे, टोटल जो हमारी स्पीड है, जो हमारी इनिशियल स्पीड है 110 का 10% निकालेंगे. सो ये हमारा कितना बन गया? 11 किलोमीटर पर आवर. नाउ न्यू स्पीड क्या होगी? जो पहली की स्पीड्स में से न्यू स्पीड को हम माइनस कर देंगे. सो इट इज़ 99 किलोमीटर पर आवर. और हम क्या कहेंगे, डिक्रीज स्पीड हमारी कितनी हो गई? 90% ऑफ ओल्ड स्पीड्स, दैट इज़ 90 बाई 100 इंटू 110, दैट इज़ 900 किलोमीटर पर आवर बेटा. Okay, so this is how we just do that kind of sums. Now see example 9 also. From a basket full of eggs, 20% of eggs broke and 25% of the eggs were reserved for the guest. Okay, एक बास्केट में से इतनी परसेंट तो 20% तो टूट गए हैं हमारे एग्स, और 25 क्या है, एग्स हमारे रिजर्व रखे हैं गेस्ट के लिए. The remaining 22 eggs were consumed by the family members. और इतने उन्होंने family members ने consume कर लिए हैं. How many eggs were there in the basket? अब कितने बचे हैं उसमें? How many broke, कितने टूटे हैं? And how many were kept for the guest? और guest के लिए eggs कितने रखे गए हैं? So for that we just let the number of total eggs मान के चलेंगे is 100. Then number of broken eggs plus number of eggs reserved for guest, ये दोनों मिला के हमारे कितने हो गए? 20 plus 25 45. आफ्टर दैट रिमेनिंग eggs कितने हैं? 100 में से माइनस करेंगे 45, तो हमारे कितने बचे हैं? 55 हमारे eggs अभी स्टिल पेंडिंग है, जो कि कह सकते हैं बचे हुए हैं. नाउ व्हेन नंबर ऑफ रिमेनिंग eggs इज 55, सो टोटल नंबर ऑफ eggs हमारे कितने थे? 100. When number of remaining eggs is 22, total number of eggs हमारे कितने हो जाएंगे? 100 by 55 into 222, that is 40. So basket में कितने हमारे eggs है? 40. Number of broken eggs अब हम निकालेंगे 40 का 20%. So 40 का 20%, that means 8. And number of eggs kept for guest, guest के लिए कितने रखे गए हैं? 40 का 25% हम निकालेंगे. सो वो हमारा आंसर आएगा 10 eggs जो गेस्ट के लिए रखे गए हैं. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. नाउ बेटा एक्सरसाइज 9.2, फिलिंग द ब्लैंक्स. ए पार्ट इज 54% इज इक्वल टू 100% माइनस व्हाट नंबर? सो हमारे पास 54% है और 100% इज ऑलरेडी गिवन हेयर. सो 100 में से हम कितना हम इसमें हम माइनस करेंगे कि हमारा ये 54 इसके बराबर हो जाएगा. सो हम इसको अगर इस वैल्यू में से माइनस करेंगे, सो 46% इज आंसर बेटा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. सो दीज आर द अदर क्वेश्चंस, यू हैव टू कंप्लीट इट योर ओन. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल. सो नाउ मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक विच इज प्रॉफिट एंड लॉस. सो in a daily routine we buy various articles from shops. Okay, हम ऐसे ही करते हैं ना, सामान हम शॉप से लेते हैं. The shopkeeper purchase these articles either from the wholesaler or directly from the manufacturers by paying a certain price. Generally, the shopkeepers sell these articles at different prices. Various terms related to these prices are involved such as cost price, selling price, profit or loss. ऐसे ही होता है ना कि एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितनी है, जब हम उसे बेचते हैं तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, हमें किसी सामान पे पर्टिकुलर प्रॉफिट कितना हुआ है एंड लॉस कितना हुआ है. सो नाउ सी द कॉस्ट प्राइस फर्स्ट. द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज्ड इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस एंड इट इज एब्रीविएटेड एज CP. तो कॉस्ट प्राइस को हम लिखते हैं C और P. ओके, जिस अमाउंट पे हम किसी सामान को खरीदते हैं. सेलिंग प्राइस क्या होता है हमारा? द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड. कोई आर्टिकल जिस प्राइस में बेचा जाता है वो सेलिंग प्राइस होता है, और उसको हम कैसे लिखते हैं? SP. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड. आफ्टर दैट प्रॉफिट. सो प्रॉफिट क्या होता है? इफ द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस इज पॉजिटिव, देन द डिफरेंस इज कॉल्ड प्रॉफिट. ओके, सी प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को हम माइनस कर देते हैं.
जितने का सामान हमने बेचा और जितने का उसकी कॉस्ट थी, तो वो हमें कितना हो गया, उसमें प्रॉफिट हो गया. सो नाउ लॉस. इफ द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस इज नेगेटिव, देन द डिफरेंस इज कॉल्ड लॉस बेटा. सी, लॉस इज इक्वल टू होता है हमारा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, लाइक दैट वे. आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, यूजुअली अ मर्चेंट हैज़ टू स्पेंड some money on freight, labor or maintenance of the purchased articles. These extra expenditures are called overheads. I hope you understood. Okay. Since overheads are an essential part of cost price, so cost price हमारा होता है is equal to payment made while purchasing the articles plus overhead charges. Generally, the profit or loss is expressed as profit means percentage or loss percentage. It is to be kept in mind that the profit percentage or loss percentage is calculated on the cost price. Profit price हमारा क्या होता है, profit percentage का formula होता है profit divided by CP into 100 and loss percentage how to find out, loss divided by CP into 100. This is very important, just keep that thing in mind beta. Now move on, solve example. Example number 1. If the profit made on a packet of pens is rupees 4, then the cost price of the packet is rupees 20, then how much is the profit percentage? So it is given that cost price कितनी है हमारी 20 और profit कितना हुआ हमें 4 रुपीज़ का हुआ. So हम क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100. सो प्रॉफिट इज 4 एंड सीपी कितना है, कॉस्ट प्राइस है हमारा 20. सो 4 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100. सो कितना निकला हमारा, yes 20%. So we can say that the required profit percentage is 20% beta. Hope you understood well. Now move on example 2. Jitesh bought 150 dozen pencils at rupees 10 a dozen. His overhead expenses were 100. He sold them at 1 rupees 20 each. What was his profit and loss percentage? So सबसे पहले क्या है हमारा, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 1 डजन पेंसिल्स की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है 10 रुपीज़ एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ 150 डजन, 1 डजन की 10 हमारी कॉस्ट है. सो 150 डजन पेंसिल्स की कितनी हो जाएगी, जस्ट मल्टीप्लाई बोथ द नंबर, सो 1500. आफ्टर दैट जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस लगे हैं, ओवरहेड एक्सपेंसेस हमारे वो है 100 रुपीज़. तो कॉस्ट प्राइस हमारी क्या बन गई, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हमारी बन गई जो 1500 है उसमें हमने 100 ऐड किया जो एक्स्ट्रा हमारा खर्चा था, सो 1600 रुपीज़. नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेंसिल कितनी है हमारी 1.20. सो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन कितनी हो जाएगी, जस्ट मल्टीप्लाई बोथ द नंबर, 1.20 इंटू 12. सो हमारे डजन पेंसिल की जो सेलिंग प्राइस आएगी 14.40. आफ्टर दैट सेलिंग प्राइस ऑफ 150 डजन पेंसिल, सो 150 की कितनी हो जाएगी 2160. मल्टीप्लाई इट. नाउ हम देख सकते हैं कि एस पी इज ग्रेटर देन सी पी, देर इज़ अ प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस. सो नाउ प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा एस पी माइनस सी पी. सो एस पी कितना था हमारा सेलिंग प्राइस 2160 एंड कॉस्ट कितनी थी उसकी 1600 थी. सो कितने का प्रॉफिट हुआ उसको 560 रुपीज़ का. होप यू अंडरस्टूड. ऑल्सो नाउ परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है हमारा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सी पी इंटू 100. सो प्रॉफिट है हमारा 560 डिवाइडेड बाय 1600, क्योंकि 1600 का 560 निकालना है इंटू 100. सो वी कैन से दैट द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ जितेश इज 35% बेटा. I hope you understood well. It's a very interesting question. Now move on. Next one, example 3. A bookseller sold 300 copies of a book at a profit of 15%. Okay. If a book cost him 12 rupees, so find the selling price of the books. Solution. Cost of one copy of the book 12 rupees. ओके एक कॉपी की कॉस्ट हमारी कितनी है 12 रुपीज़ की. सो 300 कॉपीज़ की कितनी कॉस्ट हो जाएगी, जस्ट मल्टीप्लाई बोथ द नंबर, सो 3600. ओके.
After that, it is given that bookseller sold 300 copies of the book at a profit of, कितने प्रॉफिट में उसने सोल्ड करी थी बुक्स? 15% पे. सो हमने प्रॉफिट कैसे निकालना है? 15% ऑफ सीपी. सीपी का 15% कैसे निकालते हैं? 15 बाय 100 इंटू सीपी की कॉस्ट कितनी है? 3600 रुपीज़. ये हमारा कितने के बराबर होना चाहिए? 15% ऑफ 3600, जो कि हमारा कितना है? 540. सो हम क्या करेंगे? एसपी हमारा होता है सीपी प्लस प्रॉफिट. सो सीपी हमारा है 3600 प्लस 540 एंड हमारा आंसर आया 4140 बेटा. सो हेंस वी कैन से दैट रिक्वायर्ड सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक इज 4140. Okay, I hope you understood. Now move on example 4. A man sells his bike for rupees 18,000. Okay, उसने एक मैन ने अपनी बाइक बेची है 18,000 पे, मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 20%, और उसको इसमें कितना प्रॉफिट हुआ है? 20% का प्रॉफिट हुआ है. सो हाउ मच डिड द बाइक कॉस्ट हिम? तो उसको उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी मिली होगी? सो लेट्स सी. लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइक इज ₹100. मान के चलते हैं बाइक की जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 है. देन प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? 20, सिंस प्रॉफिट हमारा 20% ऑलरेडी गिवन दे रखा है हमें. ओके, 20% उसको प्रॉफिट हुआ है. सो नाउ सेलिंग प्राइस, दैट मीन्स एसपी हमारा कितना होना चाहिए? सीपी प्लस प्रॉफिट के, और सीपी मीन्स 100 प्लस 20, दैट इज 120. नाउ इफ द सेलिंग प्राइस इज 120, देन सीपी हमारा कितना हो गया? 100. सो 120 का 100 हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 18,000 से. सो वी कैन से दैट द कॉस्ट ऑफ बाइक इज ₹15,000. इट्स वेरी इजी. आई होप यू अंडरस्टूड. नाउ मूव ऑन एग्जाम्पल 5 बेटा. Find the unknown value in the following. So here it is given, CP is given 500, SP कितना है? 600 है हमें. प्रॉफिट और लॉस हमने जस्ट फाइंड आउट. सो CP 500, SP 600. सो क्लियरली वी कैन सी दैट SP इज ग्रेटर. हमारा सेलिंग प्राइस तो ज़्यादा है. सो देयर विल बी अ प्रॉफिट गिवन बाय. सो प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं? SP माइनस CP. सो दोनों को माइनस करेंगे. सो कितना उसे प्रॉफिट हुआ? येस, 100 रुपीज़ का. आई होप यू अंडरस्टूड. नाउ मूव ऑन बी पार्ट. बी पार्ट में क्या गिवन है हमें? CP हमें गिवन नहीं है. SP इज गिवन 2390 एंड प्रॉफिट इज ऑल्सो गिवन 120.50. सो अब हम क्या करेंगे? वी नो दैट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? SP माइनस CP. सो हम क्या करेंगे? CP निकालने के लिए SP माइनस प्रॉफिट, दैट इज 2390 में से अब हम क्या करेंगे? 120.50 को माइनस करेंगे इन दैट वे, और हमारा आंसर कितना आ जाएगा? CP कॉस्ट आ जाएगी 2269.50 पैसे. दिस इज द आंसर बेटा. नाउ मूव ऑन एग्जाम्पल 6. प्रीति बॉट 1600 बनानास. प्रीति ने 1600 बनानास लिए हैं एट 3.75 rupees a dozen. She sold 900 of them at 2 for ₹1 and the remaining at 5 for ₹2. Now find the gain or loss percentage. Okay, so let's start. Cost of 1 dozen कितनी है हमारी? 1 dozen we know that 12 bananas. So 1 dozen cost कितनी है बनाना की? 3.75. नाउ 1600 बनानास की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? जस्ट मल्टीप्लाई बाय 1600. सो आंसर इज 500. एंड आफ्टर दैट CP ऑफ 1600 बनानास. 1600 बनानास का CP हमारा कितना निकल गया? 500. नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ 900 बनानास एट द रेट ऑफ 2 फॉर ₹1 हमारा कितना बन गया? 900 डिवाइडेड बाय 2 बेटा, और आप इसको सिंप्लीफाई करोगे सो कितना आंसर आएगा? 450. द सेलिंग प्राइस ऑफ द रिमेनिंग कितना बचा हमारा? टोटल हमारा कितना था? 1600 माइनस 900 इज इक्वल टू 700 बनानास. कितना? एट द रेट ऑफ 5 फॉर ₹2. दैट मीन्स 2 divided by 5 into 700 and after simplifying answer is 280 rupees. Okay, and after that हम क्या करेंगे? SP of 1600 बनानास कितना हो जाएगा? 450 plus 280
दोनों की वैल्यू को हम प्लस करेंगे, सो 730. नाउ CP ऑफ 1600 बनानास हमारे होते हैं 500 एंड SP of 1600 bananas, that is 730 rupees. So clearly we can see that SP is greater than CP beta. So there is a yes gain given by. So gain हमारा क्या होता है, SP is greater than CP, that means 730 में से हम 500 को माइनस करेंगे, so 230 rupees. Hence the gain percentage कैसे निकल गई, 230 का अब हमने क्या करना है, परसेंटेज निकालनी है. सो वी नो दैट CP इज़ 500 एंड 500 का 230 into 100, दैट मीन्स 46%. सो हैंस द रिक्वायर्ड गेन परसेंटेज इज 46%. आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल. नाउ मूव ऑन बेटा. एग्जाम्पल 7. सुबोध purchased 50 dozen bananas for 150 rupees. Okay, 5 dozen bananas could not be sold. 5 dozen banana sold ही नहीं हुए हैं because they were rotten. वो rotten थे. So at what price per dozen should Subodh sell the remaining bananas so that he makes a profit of 20%? Let's see the answer. So CP of 50 डजन बनाना, 50 डजन बनाना का जो CP कॉस्ट है वो कितनी है, कॉस्ट प्राइस कितनी है उसकी 150. नंबर ऑफ रॉटन बनानास कितने हैं बेटा, 5 डजन है. सो बनाना लेफ्ट कितने बच्चे बच्चों, 50 डजन में से 5 डजन हम लेफ्ट कर देंगे, सो 45 डजन बचे. नाउ प्रॉफिट निकालेंगे हम विच इज़ 20%. सो 20% ऑफ व्हाट, यस 150 का 20% कैसे निकालेंगे, 20 by 100 into 150, that is rupees 30. That one. And after that SP of 45 dozen banana, क्योंकि 45 डजन बच्चे थे ना जो अपनी अच्छी क्वालिटी में थे. सो 45 का SP निकालने के लिए 150 प्लस 30, दैट इज़ 180 रुपीज़. एंड आफ्टर दैट SP ऑफ 1 डजन बनाना कितने हो जाएंगे, 180 को हम डिवाइड करेंगे 45 से एंड आंसर इज़ ₹4 बेटा. आई होप यू अंडरस्टूड concepts very well. Now beta move on exercise 9.3. So here it is. First one is find the SP when CP is given 20 and gain is given 10%. So let's start. हम कैसे करेंगे इसको. So A part we are doing. CP हमारा कितना है, इस ₹20 and gain हमें कितना दे रखा है बेटा, 10%. सो अब हमने क्या निकालना है, SP निकालना है. सो वी नो दैट SP हमारा क्या होता है, जो CP होता है अगर हम उसमें गेन को ऐड कर देंगे तो वो हमारा SP बन जाता है. सो CP इज़ ऑलरेडी गिवन 20, गेन हमारा 10% है. सो 10% ऑफ 100 किसका, 20 का निकालेंगे. सो हम सिंप्लीफाई कर देंगे, 10 से ये 10 सिंप्लीफाई कर दिया 10 आ गया, और 10 से इसको सिंप्लीफाई कर दिया यहाँ पर 2 आ गया. सो 20 और 2 हमारा बच्चा, तो SP हमारा कितना हो जाएगा, SP हमारा हो जाएगा 20 प्लस 2 22. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. सो दीज आर द अदर क्वेश्चंस बेटा, यू हैव टू कंप्लीट इट योर ओन. ओके, जस्ट डू प्रैक्टिस वेल. नाउ मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक विच इज सिंपल इंटरेस्ट. सो when we need money for purchasing a house or a car or for other purposes, then we borrow money from a bank or any financial institutions, etc. We have to pay some extra money for the service of lending. This extra money depends on the sum we want to borrow and the period of time for which we wish to borrow it. This extra money is called the interest beta. It is a percentage of borrowed money which is called principals. ऐसे ही होता है ना, अगर हमें कुछ बहुत बड़ी चीज़ लेनी होती है तो हम किसके पास जाते हैं, हम अधिकतर किसी फाइनेंशियल वाले के पास जाते हैं, बैंक के पास जाते हैं. तो बैंक वाला उस अमाउंट को देने के लिए कुछ इंटरेस्ट लगाता है. सो दिस इज़ कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट बेटा. कितना इंटरेस्ट लगाता है, उसकी ड्यूरेशंस कितनी है, उसका पीरियड कितना, ये डिपेंड करता है. सो नाउ ऑन द अदर हैंड व्हेन वी डिपॉजिट मनी in a bank for safekeeping, we earn interest. Okay, interest is calculated according to an agreement which specifies the rate of interest. Generally the rate of interest is taken as percent, means per annum.
which means per 100 rupees per year. Okay. For example, a rate of 10% means per annum means rupees 10 on 100 for 1 year. Interest is also paid half yearly, quarterly और monthly. किसी भी तरीके से हम पे कर सकते हैं इंटरेस्ट को. Okay, we can choose the quarterly mode, half yearly mode or monthly mode also. If the interest for any given time is added to the principals, then the sum is called the amount at interest for that time. For example, if a man borrows 15,000 from a bank, एक आदमी ने क्या करे 15,000 रुपीज़ बैंक से लिए हैं. कितने पीरियड के लिए? फॉर 1 ईयर. कितने पर एनम के लिए? 12% पर एनम, साल के 12% के हिसाब से. सो व्हाट इंटरेस्ट विल ही पे एट द एंड ऑफ द ईयर? तो अब वो लास्ट में साल जब कंप्लीट हो जाएगा तो वो कितना इंटरेस्ट पे करेगा? सो हेयर इट इज. नाउ वी नो दैट 12% मीन्स PA per annum means if 100 rupees are borrowed, the man has to pay 12 as interest for 1 year. So interest on 15,000 का इंटरेस्ट के लिए हम क्या करेंगे? 12 by 100 into 15,000, that is rupees 1800. Thus at the end of the year the man has to pay rupees 1800 rupees as interest. ओके उसने 15,000 बैंक से लिए और लास्ट में उसको एज अ इंटरेस्ट 1800 बैंक को वापस करना पड़ा. सो वी हैव इफ P इज द प्रिंसिपल, R इज पर एनम इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, सो टाइम इज वी डिनोट T ईयर्स. देन इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बन गया बेटा? P इंटू R इंटू T इज डिवाइडेड बाय 100 बेटा. नोट the interest, that means I, is also known as simple interest. I hope you understood whole concept of simple interest beta. So now see example 1. Find the simple interest for the following. Here it is given 350 rupees for 4 years at 6% per annum. So अब हमने क्या करना है? इसका simple interest निकालना है. Solutions. सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला इज P इंटू R इंटू टी डिवाइडेड बाई 100. सो P मीन्स प्रिंसिपल कितना है हमारा? टोटल अमाउंट 350. R मीन्स किस पर एनम, रेट क्या है हमारा? 6%. और T मीन्स टाइम जो कि हमारा है 4. सो डिवाइडेड बाई 100 एंड आफ्टर सिंप्लीफाइंग आंसर इज 84. यस, तो हमारा 84 रुपीज़ क्या हो गया? उसका कॉस्ट हो गया. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल. नाउ बी पार्ट 1800 रुपीज़ है एक साल के लिए 8% के हिसाब से. तो क्या बन जाएगा हमारा? 800 इंटू 8 इंटू 1 बाय 100, तो हमारा आंसर आ जाएगा 64. सो ये हमारा 64 इसका आंसर है. आई होप यू अंडरस्टूड. नाउ अमाउंट, इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, if the simple interest for any given time is added to the principal, then the sum is called the amount at simple interest for that time. I hope you understood. So now next example 2. Find the simple interest and amount for 750.50 for 3 years at 8 per annum. हेयर P इज कितना है हमारा? प्रिंसिपल है 750.50. टर्म इज गिवन 3 ईयर्स एंड रेट कितना है? 8 पर एनम. सो हमें SI निकालना है, दैट मीन्स सिंपल इंटरेस्ट निकालना है. सो P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100, वी नो दैट. एंड आफ्टर पुटिंग द वैल्यू एंड सिंप्लीफाइंग आंसर इज 180.12. सो नाउ टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे हम? प्रिंसिपल जो हमारा प्रिंसिपल था प्लस जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट अब निकला, जस्ट ऐड ऑल द अमाउंट एंड आंसर इज 930.62 रुपीज़. होप यू अंडरस्टूड. नाउ मूव ऑन, मतलब सॉल्व एग्जाम्पल्स. नाउ एग्जाम्पल 1. सुधीर डिपॉजिट्स 2000 इन अ सेविंग बैंक अकाउंट. ओके, सुधीर एक लड़का है, उसने सेविंग बैंक अकाउंट में 2000 रुपीज़ डिपॉजिट किए हैं. The bank pays interest at the rate of 5% per annum. So what amount can Sudhir get after 1 year?
ओके, सो लेट्स सी इंटरेस्ट कितना उसको मिला. इंटरेस्ट है ऑन 100 रुपीज़ फॉर 1 ईयर, दैट इज़ 5. सो इंटरेस्ट ऑन 1 रुपीज़ फॉर 1 ईयर 5/100. सो 2000 में कितना इंटरेस्ट लगेगा. 5/100 इंटू 2000 रुपीज़ इज़ 100 रुपीज़. सो नाउ अमाउंट कैसे निकालेंगे हम. टोटल जो डिपॉजिट मनी थी 2000 में जो 100 हमारा इंटरेस्ट निकला है, जस्ट ऐड ऑल द वैल्यू 2100. So now we can say that Sudhir will get 2100 after 1 year. So 2000 रुपीज़ तो उसने डिपॉजिट करे, बट आफ्टर 1 ईयर उसको कितना मिला. 2100 रुपीज़. आई होप यू अंडरस्टूड. नाउ बेटा एग्जाम्पल 2. 7000 is borrowed at 3.5% per annum for 3 years. 7000 रुपीज़ बोरो करे गए हैं, लिए गए हैं 3 साल के लिए 3% के हिसाब से. What interest is to be paid at the end of the 3 years? 3 साल के बाद कितना अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा एज अ इंटरेस्ट, एंड ऑल्सो फाइंड द अमाउंट टू बी पेड. सो लेट्स सी. So here it is given principal 7000, rate is also given and time is also given. So we need to just find out the simple interest. So simple interest P into R into T divided by 100. After putting the value, answer is 735. Okay. So now 735 is to be paid as interest at the end of 3 years. 3 साल के बाद उसको 735 रुपीज़ एज इंटरेस्ट देना पड़ा. अब अमाउंट कितना देगा वो. यस, अमाउंट 7000 उसके पास था, प्रिंसिपल इज 7000 और इंटरेस्ट कितना आया 735 आया. सो टोटल अमाउंट कितना बन गया 7735 रुपीज़. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड. नाउ एग्जाम्पल 3. What sums of money will get annual interest of rupees 1800 at 6 per annum? Okay, so here it is given simple interest. Simple interest हमारा कितना है 1800 है. Rate is given 6% per annum and time is also given. Now we need to find out the principal. So formula is same, simple interest P into R into T divided by 100. Now put the value. After that, simplifying 1800 into 100 by 6, 30,000 is principal beta. Okay, so now move on. Example 4. Find in what time rupees 300 will yield rupees 60 interest as 5% per annum. So let's see. Principal कितना है 300, rate is 5 and simple interest हमारा है 60. Now we need to find out टाइम. सो टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे. सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100. नाउ जस्ट पुट द वैल्यू. SI इज 60, P इज 300, रेट इज 5, T इज नॉट गिवन हेयर, सो जस्ट राइट इट T. सो T की वैल्यू निकालने के लिए जस्ट राइट इट T एट फर्स्ट एंड आफ्टर सिंप्लीफाइंग आंसर इज बेटा 4 years. तो हमारा आंसर निकला 4 years. Hope you understood well. Now move on. Example 5. Mahesh invested rupees 2000 for 3 years and 5000 for 2 years at the same rate of interest. If he had received a total interest of rupees 1440, then what was the rate of interest? So let's start. लेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट. इंटरेस्ट का जो रेट हम मान के चलते हैं भाई X% है पर एनम. ओके, केस नंबर 1. P इज गिवन 2000, रेट इज X% एंड टाइम हमें कितना दे रखा है 3 years. सो हम क्या करेंगे P इंटू R इंटू T लिख देंगे. नाउ पुट द वैल्यू 2000 इंटू X और 3. सो हमारा आंसर आ जाएगा 60X. ये तो हमारा केस 1 है. ओके, नाउ केस 2. P 5000, R X% है और जो हमारा टाइम है 2 years है. सो P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100. सो हमारा ये आ जाएगा 100X. नाउ टोटल इंटरेस्ट हम निकालेंगे. सो हाउ टू फाइंड आउट. सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट वाला एंड सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड. नाउ इज इक्वल टू 1440. सो एड ऑल द वैल्यू.
60 और 100 हमारे कितने होते हैं 160, 160 में x की वैल्यू निकालेंगे, सो हमारा आंसर आ जाएगा 9। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा हो गया बेटा यस 9% पर एनम। दिस इज हाउ वी जस्ट डू दैट काइंड ऑफ सम्स। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। सो नाउ लेट्स गो विथ एग्जाम्पल 6। Suresh borrowed 3 lakh at 12% per annum from a money lender. Okay, so at the end of 3 years, he cleared the amount by paying 2,60,000 and a gold necklace. Find the cost of the necklace. तो नेकलेस की कॉस्ट हमने निकालनी है और उसने अमाउंट कितना दिया है 2,60,000 दिया है और प्लस उसके साथ गोल्ड दिया है। सो लेट्स स्टार्ट। सो सिंपल इंटरेस्ट होता है हमारा P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 एज वी नो ऑलरेडी। सो हेयर हमारा P कितना है, प्रिंसिपल है 3 लाख, रेट 12 और टाइम है हमारा 3 ईयर्स। नाउ जस्ट पुट ऑल द वैल्यू और हमारा क्या बन गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया 1,08,000। सो अमाउंट टू बी रिटर्न बाय सुरेश, सुरेश ने कितना अमाउंट रिटर्न किया है, जो उसका प्रिंसिपल था 3 लाख में उसने 1,08,000 उसका सिंपल इंटरेस्ट पे करा। सो कितना हो गया टोटल मिलाकर 4,08,000, इतना तो उसने उसको दे दिया। आफ्टर दैट अमाउंट रिटर्न बाय सुरेश इन कैश कितना 2,60,000। सो नेकलेस की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, जब 4,08,000 में से हम 2,60,000 को माइनस करेंगे, सो नेकलेस की कॉस्ट हो गई बेटा 1,48,000। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन। एग्जाम्पल 7। In how many years will a sum of money double itself at 10% per annum interest? Okay, so let the principal be x first. हमने एक प्रिंसिपल हमें गिवन नहीं है तो हमने उसको मान के चला भाई x है हमारा। सो देन अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा 2x, ओके, जो कि गिवन है हमें। सो हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट इज 2x रुपीज़ माइनस x रुपीज़। सो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया x रुपीज़। सो सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। नाउ पुट द वैल्यू और हमारा जो टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा यस 10 ईयर्स बेटा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ मूव ऑन। एक्सरसाइज 9.4। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट एट सिंपल इंटरेस्ट। सो हेयर इट इज़ गिवन, प्रिंसिपल कितना है 184, टाइम इज ऑलरेडी गिवन 2 ईयर्स और रेट है हमारा 5% पर एनम। सो नाउ वी जस्ट फाइंड आउट द सिंपल इंटरेस्ट। सो जस्ट स्टार्ट इट। ए पार्ट वी आर डूइंग फॉर्मूला, वी नो दैट हाउ टू फाइंड आउट P इंटू आर इंटू टी। सो P हमारा कितना है 184 रुपीज़, R कितना है 2 ईयर्स और T कितना है बेटा 5। सो जस्ट हम क्या कर देंगे 100 से उसको डिवाइड कर देंगे। सो अब हम क्या करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 ज़ा 10 और 10 और 184 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1840 और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। सो वी नो डिवाइड करने पे 2 डेसिमल छोड़ के हमारा यहाँ पर आंसर आ जाता है, तो 18.40 इज़ द simple interest of that one beta. I hope you understood well. So these are the other questions, you have to complete it your own. Okay, so with this we ended the chapter. I hope you understood well. So you only need to do practice beta, do practice and do rest of these exercises by your own.